Yes, a very good morning to all of you. So we were revising integers. Let us continue. Yes, Korish. यस मैम, जो आई हैव अ डाउट फ्रॉम टेस्ट मैम, जो लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने यूजिंग लॉग लगा के हमने करना था, तो मैम उसका आंसर 2⁻³ आएगा ना? अभी मैं करवाती हूँ. Many students they were having doubt in that question that using log you have to solve. I think it was statement was 8⁻³ and 2⁻². This was the Yes, statement. ma'am. Check it out. Yes. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. I think this is law of exponent. So many students they were thinking that this statement is wrong, as ma'am used to say that exponent's law will be applicable only when the bases are same, right? So many 8⁻² divided by 2⁻³ is the statement. I think 8⁻². So many students they were thinking on the same line that as ma'am is saying that for applying the law of exponent the basis should be the same. So there is a mistake in the statement. Many students they were thinking on this line. No, bete, there is no mistake in the statement. If the bases are not the same and still it is written that you have to apply the laws of exponent to solve it, that means इसका मतलब ये होता है कि किसी कहीं ना कहीं से किसी तरह से आपने बेसिस को सेम करना है. If it is written solve it using laws of exponent, that means by any means you will make the basis to be the same. आपने basis को same बनाना है. अब हमेशा जो है बड़ा नंबर छोटे नंबर में कन्वर्ट होगा, छोटे नंबर को हम बड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते, right? So we see that this 8 it can be written as, agree? Yes, ma'am. It can be written as 2 into 2 into 2 raised to power 2. Now, as we have to apply the law of exponent, the base should be a single number, where the base is occurring in the product of the three numbers. So, what we people will do? यहाँ पे सबसे पहले हम exponent की law लगाएंगे. पहला law क्या लगेगा? Bases same parts will get added. 2 की power 1, 2 की power 1, 2 की power 1. Collectively it will become 2⁻³ See, is it okay? I am applying a⁻m into b⁻m. Yes, ma'am. a⁻m is equal to a⁻m plus m. Basis same, parts will get added. Basis same, then parts will get added, right? Then you see that here one power is outside, one power is inside. Again the law of exponent is applied. a⁻m⁻n. That means a⁻mn multiply हो जाएगा. So which law you are applying? a⁻m n is a⁻mn. This becomes 2⁻6 divided by 2⁻3. अब आ गया हमारा असली क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे पास दोनों बेसिस सेम हो गए, सिंगल हो गए, रादर सिंगल भी हो गया, ये बेस सेम भी हो गया और पावर सेम है. तो इसका मतलब नाउ डिवाइड साइन यू कैन अप्लाई द लॉ a⁻m minus n. That means 2⁻6 minus 3. 2⁻3. This answer is 8. Is it okay, all of you? Many of you were creating problem about this. Excuse me, ma'am. मैम सिर्फ हमने मैंने 2⁻³ तक ही लिखा, उसके बाद मैंने 8 नहीं शो किया. क्या नहीं शो किया? मैम जैसे आपने 2⁻³ के बाद 8 कर दिया, 2 into 2 into 2, तो मैम फिर मैम रिजल्ट में, मैम आंसर में, You directly writing it like this.
Yes, Korish. Yes मैम मैम like I have just written like this 8 raised to power 2 फिर मैं उसके नीचे मैंने लिख दिया 2 raised to power 3 is equal to like बार 2 कर दिया. नहीं, आपने ये स्टेप मिस किया, सीधा ये स्टेप कर दिया. Yes मैम. ये मिस कर दिया. Yes मैम. कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये इफ यू कैन. एंड मैम मैंने मैम एक रिजल्ट में भी मैम जैसे 2 रेस्ट पर 3 हमारा रिजल्ट आया तो मैम फिर उसके बाद आपने 8 लिखा उसको आपने लाइक सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर तो मैम मैंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक की मैंने मैम किया था 2 रेस्ट पर 3 मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था. एक चीज मैं आपको बताऊं, जहां पे सिंपलीफाई लिखा हो ना, आपने जो मैक्सिमम 6 बार तक पेपर में सॉल्व करके आना. ठीक है. ओके मैम. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? सो व्हेनेवर इट इज रिटन, यस मैम. जैसे मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ. जैसे मान लो ये है, आपको आ गया यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व इट. तब आप क्या करोगे, दोनों एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका बेस भी 5 बनाने की कोशिश करोगे. हियर इट इज 5. यस मैम. मैम हम पहले लाइक एलसीएम निकाल सकते आएगा हैं. 5 into 5 एलसीएम निकालते हैं. raised to power 3. बेसिस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, 5 बार्स गेट एडेड. ओके मैम. This becomes 5 raised to power 9 into 5 raised to power 6. तो बेसिस सेम, पावर एडेड. अब ये ज्यादा पावर आ गई ना 6 से, इसको नहीं सॉल्व करना. यस मैम. यहीं पे छोड़. ओके मैम. ठीक है. सो Okay, ma'am. दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट. यू वर हैविंग दिस तो डाउट. मैम अगर हम सिंपली 2 रेस्ट टू पावर 3 लेके आते तो मैम हमारे मार्क्स तो नहीं डिडक्ट होंगे. वैसे तो 6 तक, गौरीश आपको 6 वैल्यूज तक कर लेना चाहिए सॉल्व. बाकी ओके मैम. let me see. चलिए. Now yesterday we have finished exercise 1.2. Now we are going to start with exercise 1.3. Exercise 1.3. 1.3 एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज सीखी थी, we will apply them. So let us recall the properties once again that we have done earlier. What were the properties? First was the closure property, that a and b are integers, then a into b is also integer. A b integers, then a into b is also integer. Then commutative property, that integer can be multiplied in any order. This was commutative property. Then associative property, two integers can be multiplied first and then to the third one, or the first two integers can be multiplied then to the third one. This was associative property. We have discussed it earlier. I'm just writing to recall them. Then we have done multiplicative identity. Whether multiply right side or left side, answer will always be 0. 0 is multiplicative identity. Then we did multiplicative inverse. Number multiplied by its reciprocal is always equal to 1. Oh sorry, यहाँ पे हमें 1 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो वही रह जाए. उसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए. नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें. 1 by a is multiplicative inverse of a. ठीक है. And one more property, distributive property of multiplication over addition. A into b plus c, this is a into b plus a into c. Distributive property of multiplication over addition. ठीक है. This is distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition.
बिल्कुल ठीक होगी बात. So let us start with the exercise based on these properties. Exercise based on these properties. Exercise 1.3. First question is very easy, multiplication you can do. I am starting with second question. Verify -21 into -4 plus -6 is equal to -20 into -21 into -4 plus -21 into -6. This is to be verified. And I told you earlier that when it is a question about verify, you have to take the left hand side and right hand side separately. आपको left hand side and right hand side जो है वो separately solve करना है. Let us see how. Taking left hand side, this is -21 -4 plus -6. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई किसी को अंदर नहीं लेके जाना, जो जहां बैठा है उसको उसी हिसाब से आपने सॉल्व करना है. देखिए कैसे. -21 मल्टीप्लाई, दिस इज -4 प्लस -6. So this is equal to -21 -4 and -6, it is -10. Minus plus 6 and 4 10. 6 is bigger, sign is of bigger number. Now सब्ट्रैक्शन एडिशन में पहले साइन मैच होता है और मल्टीप्लिकेशन में बाद में. ठीक है, याद रखना. इसमें हम पहले साइन मैच करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं और एंड में साइन लिखते हैं. मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लाई करके फिर साइन मैच. 21 into 200 21 into 10 is 210. Minus minus plus. Let us do right hand side. -21 into -4 -21 into -6. फिर इनको मल्टीप्लाई करो. माइनस माइनस प्लस 21 4 जा 84 प्लस माइनस माइनस प्लस, बाद में चाहे मैच कर लो साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता. 21 into 6 126 minus minus plus. Now match up the sign. Plus 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 84 plus 126. This is 210. So we see that left hand side, this is equal to right hand side. Hence verify. Hence verify. Question number 3, first part. For any integer a, what is the value of -1 into a? किसी इंटीजर को हम -1 से मल्टीप्लाई करें. कुछ बेटे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ सीधा मल्टीप्लाई करो. a into 1 a प्लस माइनस माइनस. मल्टीप्लिकेशन में साइन मैच करके बाद में जो भी आंसर आता है साइन का, उसको अपने आंसर के आगे लिख देते हैं. राइट.
right? Next is determine the integer whose product with -1. -1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट विद -1 इज इक्वल टू -22. Product with -1 is -22. Determine the integer whose product with -1 is -22. देखो ध्यान से, दिस इज -1, आंसर इज -22. आप वैसे ही सोचो अगर कि 1 को किस माइनस को भूल जाओ, 2 मिनट के लिए आप माइनस को नीचे रख दो, इसको नीचे रख. आप 2 मिनट के लिए सोचो कि आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर 22 आए. 22 से, तो यहाँ 122. हमें आंसर चाहिए -22. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ऊपर रखो, बन रहा है -22. इज इट -22? यस, ठीक है. अब एक और करवाती हूँ मैं, सेकंड पार्ट. प्रोडक्ट विद -1 इज 37. इस माइनस को 2 मिनट के लिए नीचे रखो. 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 37 आए? 1 को 37 से. ये माइनस ऊपर आया, इस माइनस ने ऊपर आके गड़बड़ कर दी. अब ये बन गया -37. हमें क्या चाहिए? +37. इसलिए हमें एक माइनस यहाँ पे भी लिखा, माइनस माइनस प्लस. नेक्स्ट इज -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो 0 आए. लेट अस सी. -1 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आए. You know, anything multiply 0 is 0. So it means if we want the answer to be 0, we have to multiply by 0. Is it okay? Yes, ma'am. Now you people are facing problem in question number 5th. Earlier when we did the chapter, you were saying that this 5th question seems to be difficult to you because here you have to use the properties to find the product. So we will do each and every part. We are having sufficient time. हम सारे parts करेंगे इसके. चलिए, let us start with 5th question, A part. Question 5th, A part is 26 into -48 plus -48 into -36. This is the question. And you have to see that which property can be applied here to solve it. इसमें हम इसको solve करने के लिए कौन सी property जो है वो apply कर सकते हैं. See, there are 2 terms in this full question. First term plus का साइन शुरू हुआ, सेकेंड टर्म. मतलब 2 घर हैं. कोई मुझे बता सकता है दोनों घरों में दादी कौन है? दादी -48. दादी जो होती है वो दोनों घरों में जा सकती है ना. तो यहाँ पे कौन है दादी? -48. दादी को बाहर निकाल दो. नहीं, निकालना नहीं है. दादी बहुत लविंग होती है. दादी से प्यार करो, दादी की रिस्पेक्ट करो और दादी की सेवा भी करो. ठीक है. अब क्वेश्चन में हम बाहर निकाल देते हैं. तो दोनों घरों में से जो कॉमन है उसको मैंने बाहर निकाल दिया. ये बचा -40. मल्टीप्लाई का साइन. पहले घर में कौन अकेला रह गया? 26. प्लस का साइन ये बाहर चला गया. दूसरे घर में कौन अकेला रह गया? -36. कॉमन नंबर इज टेकन आउट. और यस हरमीत सिंह, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम आंसर देने के लिए किया था. यस, क्या? मैम आंसर देने के लिए किया था. अच्छा, आप बता दे फिर मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मैम कहना है हरमीत सिंह, टेल मी विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड. डिस्ट्रीब्यूटिव. कौन सी? मैम डिस्ट्रीब्यूटिव. बिल्कुल ठीक. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Distributive property of multiplication over
एडिशन। एडिशन। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, -48, firstly you will solve this, plus minus minus 36, right? Further it is equal to -48 multiply, match up the sign, प्लस माइनस माइनस 36 में से 26 गया, 10 बचा, 36 बड़ा है, साइन माइनस. Now multiply this 48 into 10, 480 minus minus plus. पेपर में आपको लिखा नहीं आएगा कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, पेपर में तो लिखा आएगा कि सॉल्व इट यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड आल्सो नेम द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का नेम भी बेटे पूछ लेते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while to solving these kind of questions. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टेंशन से करना पड़ेगा. सेकंड पार्ट, एट इंटू 53 इंटू -125, 8 इंटू 53 इंटू -125. अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. यहाँ पे एक्चुअली दिखता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि हमने तो सीखा था कि जहाँ पे 3 नंबर्स होंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज तभी करेंगे जब ब्रैकेट्स लगे हों. यहाँ पे कोई ब्रैकेट ही नहीं. हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स में से उन दो नंबर्स को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए लास्ट में. जैसे 8 3 जा 24 आ रहा 0, 8 5 जा 40. इन दोनों को पास पास ले, बीच में ये बैठा है, ये कहेगा कि मैं तेरे को इसके पास जाने में हेल्प कर देता हूँ. कैसे? 8 ऐसे रह गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला. -125 into 53. Which property is this? Commutative property. Commutative property. And the two numbers, they can change their place. They can change their place. They can follow any order. That is due to commutative property. This becomes 1000. This is 53 along with 3 zeros. Minus का -53,000. -53,000 is the answer. To be very careful about the property we are using and how to detect the property. This is very important step. Next, 15 into -25 into -4 into -10. अब ऐसे तो देखा जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 0 आ जाएगा, बट ये दोनों कहाँ जाएंगे फिर? इनको मल्टीप्लाई करके तो पीछे 0 आ ही नहीं रहा. इसका मतलब हमें अगर 15 को इनमें से किससे मल्टीप्लाई करके 0 आएगा? नजदीक पड़ा हो, इससे करेंगे नहीं आएगा. इससे करेंगे 15 into 4 60, 0 आ जाएगा. इसका मतलब ये 4 15 के पास आ जाए और ये 25 15 4 की जगह पे चला, तो हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 15 into -25 into -4 कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 100 आ जाएगा. आ तो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी नहीं ना कोई यूज होनी, यूजिंग प्रॉपर्टी है. ओके मैम. -25 into -10 आपको भी यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now you can multiply 15 4s are 60 plus minus 25 into 10 250 minus minus plus. Now
6 into 25 plus minus minus 15,000. properties are to be used, very important. वो हमने बीच में ब्रैकेट्स नहीं लगाने थे 15 और -4 और -25 और -10 के बीच। जब नई ब्रैकेट लगे हुए तो हम नहीं लगाएंगे, we can do it in this. Next, -41 into 102. अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं 102 को पहले लिख लो, -41 को बाद में लिख लो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह दो। नो, ऐसे नहीं होता। दो नंबर्स को ऑर्डर चेंज करके और इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख के आप क्वेश्चन कर दो। नहीं, इसका मतलब जहां पे दो नंबर्स हैं हमें उनमें से एक नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। उस नंबर को ब्रेक करो जिसके आगे आप देखो कि जो जीरोस के नजदीक है। 102 100 के नजदीक है, तो आई कैन ब्रेक इट लाइक 100 plus 2. 102, I break it like 100 plus 2. 102, we have broken it like 100 plus 2. ठीक होगी बात? Now which property is applied? Rishabh, tell. Savya, you tell which property we are going to apply now. Savya, distributive property. Ma'am, distributive property. multiplication over addition. So let us apply it. This will be -41 into 100 plus minus मैम हम पेपर में डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिख सकते हो, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाई, दिस इज 4100 प्लस माइनस, दिस इज 82 प्लस माइनस माइनस, so -4100 plus minus 82. Match up the sign. Minus minus plus 4100 plus 82, 4182. Bigger one is 4100, sign is of minus, so answer is answer. आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन लिखना है क्योंकि घर में बड़े लोगों की बात मानी जाती है, ठीक है। Come to C part. सॉरी नहीं, सी पार्ट तो DCD भी हो गया हमारा। हमें E पार्ट, we have to start with E part. 625 into -35 plus -625 into 65, -625 into 65। बेटे देखो यहाँ पे हमारे दो घर हैं, दोनों घरों में से एक चीज कॉमन निकल सकती है ना। यहाँ पे 625 है, यहाँ पे -625। प्रॉब्लम ये है, आप ऐसे करो, पहले इस माइनस को इसके साथ शिफ्ट कर दो। मैंने ये वाला माइनस यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज, नो यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ दैट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। मल्टीप्लिकेशन में माइनस चाहे पहले नंबर के साथ लिखा हो चाहे दूसरे के साथ लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में पड़ता है। अब ये दोनों सेम हो गए, दो घरों में सेम मेंबर हो गया, इसको बाहर निकाल दो।
फर्स्ट घर में बचा -35 और सेकंड में बचा -60। दिस इज -35 प्लस -65। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Distributive property of multiplication over addition. और एडिशन Minus plus 65 and 35 becomes 100. Bigger one is 65. Sign is of minus. मैम हाँ जी, As- प्लस का साइन नहीं था, minus आपने इधर माइनस का डाला है। क्या बच्चे बोलो दोबारा। मैम -35 के बाद आपने इधर माइनस का साइन डाला है, तो इधर प्लस का नहीं आएगा। बच्चे साइन खोलो, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट्स भी तो खुलने हैं। ओके This becomes ओके मैम। 500. So this is all about today's lecture. We continue to 500 till then. Take care.